Hello everyone. Chhawa is a 2025 Indian Hindi language historical action film directed by Lakshman Utekar. Based on the life of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, the second ruler of the Maratha Empire, the film stars Vicky Kaushal as Sambhaji Maharaj with Rasmika Mandana portraying his wife Yasubai and Akshay Khanna as a Mughal Emperor Aurangzeb. Following the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj, his 24-year-old son Sambhaji, known as Chhawa, is determined to fulfill his father's vision of Saurajya. Alongside his wife Yasubai and loyal commander Hanbirao Mohite, Sambhaji confronts the Mughal Empire's challenge. The narrative showcases Sambhaji's strategic brilliance and valor, highlighting significant victories such as the invasion of Mughal strongholds like Buharanpur. Despite facing betrayal and eventual capture, Sambhaji remains steadfast, enduring Soviet torture without compromising his principles and the Maratha sovereignty. Vicky Kaushal as Chhatrapati Sambhaji Maharaj in this film and Rasmika Mandana as Yasubai Bhosle, Akshay Khanna as Mughal Emperor Aurangzeb, Ashutosh Rana, Divya Datta, Diana Penty. Lakshman Utekar, known for films like Mimi and Luka Chupi, directs Chhawa. The screenplay is an adaptation of Shivaji Sawant's Marathi novel Chhawa. Produced by Dinesh Vijan under Maddock Films, the movie brings to life the legacy of Sambhaji Maharaj. Critics have lauded Vicky Kaushal's portrayal of Sambhaji Maharaj, commending his ability to embody the warriors, the spirit and depth. The films, the action sequences and direction have also received positive feedback. However, Rasmika Mandana's performance as Yasubai has garnered mixed reactions, with some critics pointing at challenging in Hindi diction and emotional delivery. Chhawa has achieved significant commercial success. But when we were shooting this sequence, it was shot with a dummy, it was shot with sometimes nobody in front of you, there's no animal, you would just imagine the animal, and it was going to be created in the post. So we were all very curious how it's going to turn up, and the way it's turned up and the way the frame is looking, everything is just, I think this was the frame, this was the shot which surprised me in the most beautiful way. विकी कौशल ने इस मूवी में इतनी शानदार एक्टिंग की है कि यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को पर्दे पर सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि उसे फिर से जीवित कर दिया है। ऐसा लगता है कि सिर्फ बॉडी विकी कौशल की है, लेकिन ऑरा छत्रपति संभाजी महाराज का है। क्या इतना आसान रहा होगा विकी के लिए यह रोल करना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने 25 किलो वेट गेन किया, तलवारबाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग की। इस रोल के लिए डेली 6 से 8 घंटे मेहनत कर रहे थे विकी, और उन्हें इस रोल के लिए प्रिपेयर्ड होने में 7 महीने लगे। क्या लेकिन सिर्फ बॉडी बनाने से, 25 केजी वेट गेन करने से, घुड़सवारी सीखने से और कोई तलवार और लाठी चलाना जानता हो तो ऐसे बंदे को छत्रपति संभाजी महाराज के रोल के लिए वाकई कास्ट किया जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ विकी कौशल ने बाकी चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया था। यह कैरेक्टर बेहतरीन निभाने के लिए विकी ने इतिहासकार और विशेषज्ञ के साथ समय बिताया, ताकि वो छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को जान सके और यह कैरेक्टर निभाने के लिए खुद में कुछ बदलाव कर सके, जैसे कि बॉडी लैंग्वेजेस, बोलने की स्टाइल और छत्रपति संभाजी महाराज के जैसा शाही अंदाज। इसीलिए विकी ने 1600 के दौर में बोली जाने वाली मराठी लैंग्वेज का डायलेक्ट भी सीख लिया। इतना सब करने के बावजूद भी वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी तो मेन चीज बाकी थी और वो लुक टेस्ट।
क्योंकि यह कोई साधारण और काल्पनिक रोल नहीं था। यह एक ऐसे महापुरुष का रोल है जिनके प्रति कई राष्ट्र प्रेमियों की भावना जुड़ी है। अगर लुक्स को लेकर जरा सी भी गड़बड़ हो जाती, इस वक्त मूवी को जितनी तारीफ मिल रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा विरोध पब्लिक ने किया होता। इसीलिए विकी के कई सारे लुक टेस्ट किए गए। विकी का संभाजी महाराज जैसा डिट्टो लुक हासिल करने के लिए मेकर्स ने श्रीकांत देसाई को हायर किया। श्रीकांत देसाई एक जाने माने मेकअप आर्टिस्ट है जो पहले कई सारे बॉलीवुड मूवीज के लिए काम कर चुके हैं। छावा के पहले विकी ने सैम बहादुर मूवी की थी और उस मूवी में दिखाए गए सैम मानेकशॉ जी के कैरेक्टर का लुक श्रीकांत देसाई ने ही क्रिएट और ट्रांसफॉर्म किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज, उनके लुक्स पर अगर आप गौर करोगे तो आपको एक यूनिक हेयर स्टाइल के साथ एक जबरदस्त बियर्ड स्टाइल भी देखने को मिलेगा। उस यूनिक स्टाइल को अचीव करने के लिए मेकर्स ने विग्स इस्तेमाल करने की प्लानिंग की थी, लेकिन विकी ने सैम बहादुर मूवी के शूटिंग के समय से ही बोल दिया था कि वो किसी भी तरह का विग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सैम बहादुर के कैरेक्टर के लिए उन्होंने नकली मूछें लगाई थी। लेकिन इस मूवी के लिए ज्यादा एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाने वाले थे। उन सीक्वेंस में विग संभालना विकी के लिए मुश्किल हो जाता, इसीलिए इस बार उन्होंने ओरिजिनली बाल बढ़ाए और एक शानदार लुक हासिल किया। हालांकि विकी के कर्ली हेयर्स होने की वजह वो बाल ज्यादा बढ़े नहीं, इसीलिए बाद में कुछ हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल आर्टिस्ट को करना पड़ा। यह लुक टेस्ट अचीव करने के लिए आर्टिस्ट को 5 से 7 घंटे का समय लगा था। इतने समय तक विकी आर्टिस्ट के सामने बैठा करते थे। ऐसे 3 लुक टेस्ट होने के बाद यह लुक फाइनलाइज्ड किया गया था। गुस्से में आग बबूला हुआ औरंगजेब जब महाराष्ट्र में आकर मासूम जनता पर जुल्म करता है, तब उसे प्रत्युत्तर देने के लिए संभाजी महाराज अपने मावड़ों के साथ कई अलग अलग जगह पर मुगलों के साथ लड़ाई करते हैं। इसमें एक सीन वाई के धूम डैम के पास शूट किया गया था। इस सीन में दिखाई गया यह अंडर वाटर सीन रियल में उस डैम के पानी में शूट किया गया था। इस सीन को परफॉर्म करने के लिए मेकर्स ने डैम के पास एक छोटा सा सेट तैयार किया था। आप इस बिहाइंड द क्लिप में देख सकते हो कैसे इस सीन की रिहर्सल की जा रही है। छावा का संगमेश्वर बैटल सीन, जिसमें संभाजी महाराज मुगलों से घिर जाते हैं, यह एक्चुअली वाई के इस कृष्णा घाट मेनौली पर शूट किया गया है। आपने इस सीन में जो इंटेंस, ये थी ब्लॉकबस्टर छावा मूवी के पीछे की दुनिया। ये सब देखकर एक ही बात कह सकते हैं, जो मेहनत स्क्रीन के पीछे होती है वही असली सिनेमा का जादू होता है। आपको क्या लगता है, इतनी मेहनत और डिटेलिंग के बावजूद भी मूवी में कुछ और बेटर हो सकता था, या फिर मेकर्स ने इतिहास को स्क्रीन पर लाने का पूरा जस्टिस किया? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। हम जानते हैं कि एक मूवी में राजे की पूरी कहानी दिखाना तो मुमकिन नहीं है, और इसीलिए मूवी में हमने जो भी देखा वो सिर्फ एक टॉप ऑफ द सरफेस है। लेकिन यह भी सच है कि डायरेक्टर ने जो दिखाया है वो एकदम शानदार है। हमने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की संघर्षमय कहानी बताया, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स और इन डेप्थ सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स के साथ हम हर बार आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भवानी, जय शिवाजी, जय शंभूराजे।